अयम निजय परो वेति गणना लघु चित्तसामा उदार चरिताना तु वसुधेव कुटुंबकम कुटुंबकम कुटुंबकम. This is a श्लोक 71 from अध्याय 4 and इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है. इस तरह की गणना या सोच छोटे चित्त वाले लोग करते हैं. उदार हृदय वाले लोगों को तो संपूर्ण धरती ही परिवार नजर आती है. कोविड-19 ने स्पेसिफिकली हमें यह सिखाया and taught us. During these last 8 to 10 months, we realized that the nuclear powers became powerless. But what happens, we saw that nature takes its revenge. In real sense, the mother nature, who knows that all those atrocities which were happening and inflicting upon the mother nature came back in form of a return back. Where it originated, how did it come? We will learn a bit more from it. But in between all this negativity came the big positive part that we all are together and the world is a single place and we can actually fight against something like this well by contributing rather than only word called fighting. I think Vasudhaiva Kutumbakam has also been a philosophy followed by India all along, and it was Bhagwan Mahavir's vision, which I call is of holistic development and respect for all forms of life. Non-violence, whether plant has life or not, I think the Bhagwan taught us much earlier. And should we be nice to, I think, every human being, every living being, including a small insect, was something about the acceptance of non-violence, both as a creed and a strategy to make the world a better place, was an extension which was given with the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. But we all take a lesson as well that we should not play with the mother nature. We should start working with it. The focus on environment, even currently in the corporate India, makes me very encouraged that whether it is social responsibility or being responsible for environment or being taking care of every aspect of life, not only profits, is something which is coming as a world order. Today we have an expert with us. He's amongst us, and I'm very fortunate to have him over here. I have seen him in person, and being the best scientist, one of the top 25 scientists across, special work on Alzheimer's disease. But we have Dr. Mahavir Jainji Golecha, he's an Inspire Fellow of the Government of India and internationally recognized public health policy and a social policy expert. He's alumni of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, London School of Hygiene, and for his contributions in medical research, civil services, and social services, he has received more than 30 odd awards, international, national, and social. He's contributing significantly to the COVID-19 pandemic right now, actively over there. If I were to put in last 40 to 50 days, Mahavirji has been part of the entire rollout which has happened in India. And India is considered to have handled COVID-19 the best manner across the world. Itni population, itne challenges, limited resources, and Mahavirji being at the core, along with the Prime Minister Office through Niti Aayog, and running this program successfully, first for curtailing or controlling, and then to have a vaccine getting developed. The approval of vaccine, जो हमने 2 vaccine अभी इंडिया में चल रहे हैं, which was got approved and a few more coming in, has passed through his musters and has gone in a big manner thing across. Currently, I think he's working on important projects with Niti Aayog, Department of Science and Technology, and Ministry of Health, Government of India, and his thought on social policy, public policy, personally committed to the society as well as to Dharma,
is something we would like to have. I think such a pleasure to have you, Mahavir ji. Over to you. Thank you very much. I think it's a pleasure to welcome you. थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। नमो थुणम समणस भगवहु महावीरस। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं रत्न संघ से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरा जीवन प्रारंभ हुआ था, जब मैं बचपन में छोटा बालक था, तब आचार्य श्री हीरा मुनि जी महाराज साहब मेरे घर के पास विराज रहे थे। उस समय से जैन धर्म के संस्कार परपना शुरू हुए और जैनिज्म को मैंने मेरे हृदय में बसाना शुरू किया। और रत्न संघ से मेरा बहुत ही लगाव है और गुरुदेव की काफ़ी कृपा रहती है। और जो प्रोफेशनल फोरम की स्थापना हुई, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और शेखर जी भंडारी और जो युवक परिषद है, ये सब मिलके इसको अच्छे से संचालित कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। और इस फोरम के माध्यम से जो इतने बहुत ही उपयोगी, जो समाज उपयोगी, जो प्रोफेशनल के लिए उपयोगी होते हैं, वो वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। ये भी बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। और ये क्रम आगे किसी न किसी माध्यम से चलना चाहिए। चाहे हम हर साल एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेशनल की कॉन्फ्रेंस करें, चाहे हम हमारे समाज के युवाओं के लिए, जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसको वैज्ञानिक रूप से धर्म से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रयास करें। ऐसे कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। और उसके लिए हम सभी जो प्रोफेशनल हैं, हम इस रत्न संघ के, उनकी सबकी जिम्मेदारी है और आगे आके ये कार्य करना चाहिए। जो आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे नहीं लगता है जिसके हृदय में जैन धर्म है उसको इस बारे में बताने की आवश्यकता भी है कि कोविड-19 जैन धर्म से कैसे जुड़ा हुआ, और जैन धर्म के सिद्धांत, तो जैन धर्म के जो मूलभूत जो आगम है, मूलभूत जो सिद्धांत है, मूलभूत जो मूल्य हैं, उनसे किस प्रकार से उन मूल्यों के हृदय में उतार कर उन मूल्यों को अपन प्रसार करके कोविड-19 जैसे जो पेंडेमिक, इतनी बड़ी-बड़ी महामारियां हैं, उनको कैसे हम इस विश्व को बचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व पिछले 12-13 महीनों से एक बहुत ही बड़ी महामारी से गुजर रहा है। एक छोटे से जो टाइनी माइक्रोब होता है, वो मतलब इतना स्ट्रॉन्गर हो गया कि कोई भी जैसा कि शेखर जी ने बताया कि जो न्यूक्लियर वारहेड है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। उसने पूरे विश्व को मतलब बंद कर दिया, लॉकडाउन के अंदर कर दिया। चाहे वो कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी लॉकडाउन में थे। ना कोई संपत्ति काम आ रही थी, ना किसी की पावर काम आ रही थी, ना किसी का पोजीशन काम आ रहा था। उसने पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, लाइवलीहुड है, लाइफ से उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। और मानवता ने एक बहुत ही बड़ी जो ग्लोबल क्राइसिस है उसको झेला है। परहैप्स द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ आवर जनरेशन। मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसमें इस टाइप की महामारी हम वापस देख पाएंगे। और उसके अलावा ये इतना शीघ्रता से फैला है। स्पेनिश फ्लू भी आया था 1918 में, लेकिन वो इतना तेजी से नहीं फैला था। ये तेजी से फैला, लाखों लोगों की जान भी गई, करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब हुई। तो इससे हमें काफी सारे लेसन्स सीखने को मिलते हैं कि वास्तव में स्पिरिचुअल पाथ जो हमारे ग्रंथों में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सनातन हो, सब धर्मों में जो स्पिरिचुअल पाथ बताया गया है, उस स्पिरिचुअल पाथ जो डिस्टर्ब हुआ है, उस वर्ल्ड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हुआ है, उसको हम पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके कारण से कितनी बड़ी समस्या हमें पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही है। और अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले समय में इससे भी बड़े डिजास्टर हमें देखने को मिलेंगे। और वास्तव में मैं कहता हूँ कि जो हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हम जैन धर्म से जुड़े हुए। और जैन धर्म के अगर मैं सिद्धांतों की बात करूं, और अगर वास्तव में उसको विश्व ने अपनाया होता और विश्व ने उसको फॉलो किया होता, तो शायद हम इस प्रकार की महामारी से बच सकते थे। तो जो मैं कुछ मूलभूत सिद्धांत है जैन धर्म के, उसको कोविड-19 से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और हम सब उसको समझेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत मूल्य, जो हमारे जो ग्रंथों में 2500 साल पूर्व भगवान महावीर और उनके समकक्ष सब समझा के गए थे, वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो जैन धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत है नॉन वायलेंस, कि अहिंसा, कि हमें किसी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जैन धर्म जब अहिंसा की बात करता है तो वो ये नहीं कहता है कि मनुष्य, वो जो भी लिविंग बीइंग इस प्लानेट पे हैं, इस वसुधा पे हैं, उसके बारे में बात करता है। अहिंसा इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ आवर रिलीजन। Not only our religion, some or more other religions which also talk about the non-violence. And basically, if we talk, this derived from simply mean non-violence. The religion is interpretation of word is not
cause harm to any living being. And ahimsa is applicable to not only human being, as I already mentioned, but all form of life such as animal, plant, insect, and even microorganism. And this is the only one religion in the world which talk about harmony for all living being, including human being, animal, plant, insect, and microorganism. Further, most people would not think religion is a philosophy that is based on scientific principle. But in Jainism, whatever we are, the Center for Disease Control, USA is talking that about microorganism, which it's already mentioned in our Agam and lots of texts 25-year-old back. Then if we talk about like existence of microbes, as I already mentioned, what CDC is recently advised to wear a cloth face and mouth covering when we are out in public. Because according to that, we can infect one person to other person through tiny microbes, through our saliva, through our breath. So this is we already know our monks and those who follow the strictly Jainism, we always recommend the wearing the mupatti on our face. So that is we can prevent inhalation of small microbes and also prevent other form whichever microbe we are exhaling, so other can't get infected. So Jain believe during the inhalation process, such organisms are killed, and therefore the covering are in place to exercise ahimsa, protect all forms of life. If we will speak, microorganism can be killed. So the Mupati practices exist in our religion. Then whatever WHO has recommended, don't touch the infected people with bare hand. If you need to touch, please wash your hand rigorously, isolate the infected person, maintain distance. So whatever the advisory you will see, there are clear cut harmonization with Jain principle with whatever advisory being given by WHO and other health agencies. Further, what we believe that जो भी exist करता है everywhere in the universe with their own spiritual path to follow, सबको अपना अपना पाथ फॉलो करना है, सबको अपने अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एकेंद्रिय हो, बहिंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, जो हमारा प्रिंसिपल है। और हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, जो भी जीव इस वसुधा पे जीवित है, इस वसुधा पे रह रहा है, उसकी मॉरल ड्यूटी है कि कोई भी दूसरे जीव के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करे, उसको अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने दे। हम न तो डिफॉरेस्टेशन करें, न हम किसी जीव की हत्या करें, हमें किसी का पाथ डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। ये मेन प्रिंसिपल है। क्यों प्रिंसिपल है कि सभी जीवों को अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है, अपने जो कर्म बंधन किए हुए हैं उनकी निर्जरा करनी है। इसके अलावा काफी सारे जो हमारे जैन धर्म के प्रिंसिपल हैं वो साइंस में रूटेड है, जो भी वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है। देन जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, काफी सारे जो संप्रदाय जैन आर रिक्वायर्ड टू क्लीन वाटर, अगर हमें या तो कपड़े से छानना है या पानी को गर्म करके पीना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पानी होते हैं उसमें अनंत काय जीव होते हैं और उन जीवों की हमारे बॉडी में जाए या उससे तो उनकी हिंसा हो सकती है। तो इसके लिए कपड़े से छानो और कपड़े को हम सुखोते हैं कहीं पे, ताकि वो जीव वापिस माइक्रोब वहां से चले जाए। देन जो अहिंसा की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जैनिज्म हमें कहता है कि हमें शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मांसाहार हम करते हैं उसमें किसी न किसी जीव की हत्या होती है। तो जैन are expected to even avoid roots and tube because we believe कि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, उनकी हत्या को हमें, और ये हमारे मतलब हमारे रूट में, हमारे जैनों के जो मतलब हृदय में ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द लाइफ स्टाइल ऑफ इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एम्बेडेड बीनीथ द ग्राउंड, दैट इज जो हम कहते हैं कि कंदमूल नहीं खाने चाहिए, और अगर हम ये तोड़ते हैं खाते हैं तो हम उनको हार्म करेंगे, और नॉनवेज का तो कोई सवाल ही नहीं होता किसी जीव की हत्या करने का। तो फर्दर अगर हम बात करें तो जो ये आप देखिए जो भी बीमारियां, जो भी वायरल डिजीज जो रिसेंट पास्ट में आई है, अगर कोविड-19 की मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि वुहान के जो सी फूड मार्केट था, जो एनिमल सोर्सेज का जो मार्केट था, वहां से ये बीमारी महामारी प्रारंभ हुई। तो उसका सोर्स क्या था? एनिमल सोर्स।
चाहे वो चमगादड़ से आई हो, चाहे वो कुछ बर्ड फ्लू आता है वो पक्षियों से आता है, स्वाइन फ्लू है वो सुअर से आता है। तो ऐसी कितनी भी बीमारियां जो रिसेंट पास में आई है इन्फेक्शियस डिजीज, वो मैक्सिमम बीमारियां नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आती है। अगर हम वो नॉन वेजिटेरियन का प्रयोग नहीं होता है जिन देशों में, उन देशों में इन महामारी कम पाई जाती है। लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो एक जगह से इंसान बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, तो ये सब जगह बहुत ही कम समय में फैल गई। उसके अलावा आप देखिए जूनोसो, जो भी ये एनिमल सोर्स से बीमारी आती है उसको हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोसिस बोलते हैं। तो चाहे वो इबोला हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, सभी बीमारियां एनिमल सोर्स से आती है। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है जैनिज्म प्रिंसिपल का कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स इसीलिए कहा गया है कि हमें किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है। अगर हम उन जीवों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो भी हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लाता है कि अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं ह्यूमन बीइंग, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी हमें डिस्टर्ब करेगा। फर्दर जो जैनिज्म है वो हमेशा हम कहते हैं कि हमें सब जीवों के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो अदर माइक्रो ऑर्गन जो मुंह पत्ती पहनने की हम बात करते हैं, सबके साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी जीव की हार्मोनी को, किसी भी जीव के स्पिरिचुअल पाथ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और हर एक जीव का कुछ ना कुछ रोल है इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। और अगर हमें इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ रहना है तो हमें सबकी को एग्जिस्टेंस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। उसी अगर यही करेंगे हम, तभी इस वर्ल्ड में पूरा बैलेंस बना रहेगा इकोसिस्टम का, नेचुरल रिसोर्सेस का, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका पूरा बैलेंस बना रहेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस होगा, और इम्बैलेंस आखिर कहीं ना कहीं एक बार हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, बहुत बड़े डेवलपमेंट कर देंगे, बट आखिर में हम हमारा जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन एनिमल लाइफ्स मैटर। और बहुत ही मुझे ये कहते हुए प्राउड हो रहा है कि अगर मैं काफी रिलीजन की बात करूं, कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि एनिमल लाइफ्स भी मैटर करती है। जैन धर्म ही एक ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि एनिमल लाइफ्स आल्सो मैटर, और इसके लिए जैनिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हमें एनिमल लाइफ को रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो जैन धर्म के स्कॉलर है, जैन धर्म के जो आगम है, वो बिलीव करते हैं जो हमारी अर्थ है, जो हमारी वसुधा है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ये सदियों से चला आ रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ही अच्छे से फंक्शन करेगा। अगर इकोसिस्टम में हार्मोनी होगी तो ही ये फंक्शन करेगा। अगर हम मतलब कुछ अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कुछ मतलब मॉनिटरी गेन्स के लिए जो सरकारें आजकल करती हैं, हम काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हम दूसरों को हार्म करेंगे खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वी आर नॉट respecting the harmony of other organism living on the planet. Then ultimately we will see more COVID-19 like pandemic in the future if we will not, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो आने वाले समय में काफी सारी क्राइसिस आने वाली है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, कोविड-19 के लिए तो वैक्सीन भी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं होगी। जो इतने बड़ी ज्यादा गर्म दिन हम देख रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है प्लानिट में, और हमें ये लगता है कि गर्मी से कोई नहीं मरता है। हमने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हीट एक्शन प्लान। तो जब हमने जो टेम्परेचर होता है जो बढ़ रहा है, मतलब काफी वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, गर्मी के समय आजकल 47, 48, 50 डिग्री तक भी जाने लग गया काफी जगहों पर। और जब हमने जो मृत्यु दर होती है उससे कोरिलेट किया, तो हमने पाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ऑल कॉज मॉर्टालिटी, जरूरी नहीं कि हीट से ही मर रहे हो, लेकिन हीट के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, हीट के कारण कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, हीट के कारण हीट स्ट्रोक आ जाता है। तो उसके कारण ऑल कॉज मॉर्टालिटी 100%, 200% तक काफी शहरों में बढ़ जाती है। तो ये जो हम सृष्टि को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये हमें किसी ना किसी माध्यम से हार्म करेगा ही करेगा। ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं देखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट दिखेंगे हमें, और अभी तो क्लियर कट इफेक्ट आ रहे हैं। और जो एनिमल इन्फेक्शन हो रहा है, अभी तो हम क्या ह्यूमन इन्फेक्शन ही देख रहे हैं, लेकिन जो अगला पेंडेमिक आने वाला है, एनिमल्स में बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे। और एनिमल, अब ये सृष्टि ऐसे होगी, इसको हम वन हेल्थ बोलते हैं। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ऑल सभी की इंटरेक्शन, क्लियर कट इंटरेक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है। और एनिमल इन्फेक्शन
क्लियर कट ह्यूमन में इन्फेक्शन होंगे, और वो नेक्स्ट आने वाले काफी सारे पेंडेमिक है। और क्लाइमेट चेंज वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर, बिगेस्ट पेंडेमिक वी विल बी फेसिंग इफ वी विल नॉट अवेकन राइट नाउ। देन जो ह्यूमन आर, जो हम, मैंने काफी बार बोल दिया कि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनिमल इकोसिस्टम, प्लांट इकोसिस्टम, माइक्रो, वो उन सबको डिस्टर्ब करें, अल्टीमेटली अगला टारगेट उन सबका ह्यूमन बींग ही होंगे। अगर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो जो हैबिटेट्स होते हैं हमारे एनिमल के, प्लांट के, उनको भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। जैसे जो मैं आपको बात करूं, अंटार्कटिका में काफी सारी पहले बर्फ जमी हुई है, ठीक है, सदियों से वहां पे बर्फ जमी हुई है, काफी सारी आइस है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, तो वो परतें पिघल रही है, और उन परतों के द्वारा काफी सारे नए नए वायरस आ रहे हैं। जो वायरस हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखे भी नहीं थे, वो नए नए वायरस आ रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन सब के कारण जो गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा बढ़ रही है, वो सब करके नई नई इन्फेक्शियस डिजीजेस आ रही है, क्योंकि जो वायरस परतों के नीचे जमे हुए थे सदियों से, पता नहीं कहाँ से कब से वो पड़े हुए थे, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाहर आ रहे हैं। तो हमें ये अभी भी चेतने की आवश्यकता है कि अगर हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़े डिजास्टर देखेंगे। और ये हमारा जैन धर्म कहता है, मूलभूत जो जैन धर्म का सिद्धांत है कि हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार है, और उसको अपना स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने का अधिकार है। जो भी कर्म बंधन किए हैं उनकी निजरा उसको इसी विश्व में, इसी वसुधा पर रह के करनी है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी जीव की हत्या करें, किसी प्लांट की हत्या करें। ये सब जैनिज्म कहता है। देन अगर मैं बात करूं, जो मैंने बताया जूनोटिक डिजीजेज जो बढ़ रही है, वो सब ये जो हम इकोसिस्टम डिस्टर्ब करें उसके कारण बढ़ रही है। जो लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात ये कि हमें शॉर्ट टर्म गेन दिख रहे हैं। सरकारें फॉरेस्ट जो कट हो रहा है उसको इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, उनको टैक्सेशन ज्यादा मिल रहा है। एनिमल स्लॉटर को कोई नहीं रोक रहा है क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो रही है। लेकिन अगर हम उसको कोविड-19 पैंडेमिक से जब तुलना करेंगे कि अगर वास्तव में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हमारी इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे कि जो हम स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे, तो उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है वास्तव में। लेकिन वो सोचने की आवश्यकता है, हमें इंटरनलाइज करने की आवश्यकता है, पॉलिसी मेकर को समझने की आवश्यकता है कि हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई हम लॉन्ग टर्म कोई बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, वसुधा का भी और जो ह्यूमन बींग है, जो एनिमल बींग है, टोटल इकोसिस्टम का। जैसा कि मैंने बताया कि जैन धर्म के काफी सारे सूत्र है, उसमें इस तरह की जो पेंडेमिक के प्रिवेंशन के बारे में एक ओद नियुक्ति ग्रंथ है, उसमें ये पहले से ही बताया गया है। जो डब्ल्यूएचओ अभी एडवाइजरी दे रही है, जैन धर्म का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, ओद नियुक्ति ग्रंथ। उसमें इस बारे में काफी अच्छे से बताया गया कि एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक के समय में क्या करना चाहिए, अगर इस प्रकार का कोई बीमारी हो तो जो साधु साध्वी विहार करते हैं उनको बड़े बड़े समूह में नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे समूह में विहार करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें जैन धर्म में बहुत ही अच्छे से बताई गई है। सेकेंडली अगर बात करूं मैं, तो जैन धर्म का अगला प्रिंसिपल क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह में हम क्या कहते हैं कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अभी मैंने मेरे एक मित्र से कल ही बात करा था, अच्छे मेरे रिलेशन है, तो उन्होंने बताया कि जो आमिर खान है अभी ही इज बिलीविंग ऑन मिनिमलिस्टिक अप्रोच, मतलब अपरिग्रह पे बिलीव करता है कि जितनी सामग्री की मुझे आवश्यकता है उतनी ही सामग्री में जीना चाहिए। आज आप देखिए कितने हमारे समाज के देख लीजिए, और कितने भी समाज, कितने करोड़ों रुपए उनके पास, अरबों रुपए, खरबों रुपए, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कोविड-19 पैंडेमिक के समय वो घरों में बंद थे, ना उनकी मर्सिडीज काम आ रही थी, ना उनके बड़े बड़े बंगलो काम आ रहे थे, ना वो कहीं बाहर फॉरेन जाके एंजॉय कर पा रहे थे, इंटरटेन कर पा रहे थे। तो यही हमारा सिद्धांत है अपरिग्रह की। आपके पास जितना परमात्मा ने दिया है आपको, अपने आपके अच्छे कर्म किए हुए उसके कारण जो मिला है, उसमें जितना आपके लिए आवश्यक है उतना जीवन के लिए आप रखिए, बाकी का विसर्जन कीजिए, बाकी का मानवता के लिए कीजिए, जीव दया कीजिए। यही हमारा जैन धर्म कहता है कि अपरिग्रह, मिनिमलिस्टिक अप्रोच, कि जितनी हमें आवश्यकता है उतने में ही हमें जीना चाहिए। ज्यादा जो पदार्थ है उनको भोगना नहीं चाहिए, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो लग्जरी हो, जितनी हमें आवश्यकता है उतना उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरों के लिए, चाहे वो वैयावच करना चाहिए, चाहे वो जीव दया करनी चाहिए, चाहे वो साधर्मिक जो हमारे भाई है उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक मैं बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आया।
मैं जब एम्स में पढ़ रहा था तो एम्स के बाद अधिकतर लोग अमेरिका जाते हैं और मैक्सिमम एम्सोनियन अमेरिका में सेटल है। तो उस समय मैं एपीजे अब्दुल साहब के साथ कार्य कर रहा था, तो उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी मेहरौली में चातुर्मास के लिए विराज रहे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मुझे कहा कि आप जैन हो, आप गए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिलने। मैं क्यों जानता हूँ, मैं जैनिज्म जैन हूँ, लेकिन अभी गया नहीं। तो वो मेरे को लेके गए आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास और हम बैठे थे। तो कलाम साहब ने मुझे मिलवाया कि ये डॉक्टर महावीर गोलेचा एम्स में अल्जाइमर पे रिसर्च कर रहे हैं, एपिलेप्सी पे कर रहे हैं। उस समय मेरी एज हार्डली 21-22 थी। तो आचार्य श्री ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपका आगे का लक्ष्य क्या है, आगे आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा सब एम्सोनियन है, मैंने बहुत ही मेहनत की है, मेहनत करके मैंने एम्स में रैंक लाई है, एम्स में पढ़ाई की और एम्स में बहुत अच्छा मैंने रिसर्च करके आई हैव डन गुड वर्क, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आगे मेरा है कि अमेरिका में जाके अच्छे से सेटल होऊंगा, मैं अच्छी जीवन जीना चाहता हूँ। तो वहां पे जब मैंने देखा तो 1-2 मिनट के लिए एकदम शांति हो गई। मैंने कहा शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद उचित नहीं था। फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे एक ही शब्द कहा कि क्या आपके पास 10 करोड़ होंगे, जो अगर और पैसे कमाओगे तो क्या करोगे। अल्टीमेटली सॉरी अल्टीमेटली 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 यस जा सकता है। अल्टीमेटली नहीं, आई थिंक बच्चों के साथ ऐसा होता है, डोंट वरी, आई थिंक इट इज वेरी नॉर्मल सॉरी एंड सॉरी डोंट वरी, कंटिन्यू। सो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, तो व्हाट यू विल डू। तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी लोगे, 2 बंगले एक्स्ट्रा लोगे, अल्टीमेटली वो क्या काम आएगा आपके। लेकिन अगर आपको इतना टैलेंट दिया है, आप इतने प्रतिभाशाली है, तो आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं और उससे आपको सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आएगा। उससे आपको आएगा कि जब तक आपके पास मेंटल पीस नहीं है, फिजिकल आपके पास बहुत सारी चीजें है, लेकिन जब तक मन में संतुष्टि नहीं है, मन आपका शांत नहीं है, तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। वही हमने अभी देखा, कितने करोड़पति बढ़ती थे लेकिन उनका मन शांत नहीं था, उनकी डेथ होगी, क्या काम आई, उनकी दौलत सब कुछ यहाँ पड़ा रहा और वो चले गए। और वास्तव में अगर अपरिग्रह का ख्याल होता, और मैंने जब धीरे धीरे फिर जैनिज्म को और समझना शुरू किया, हालांकि बचपन से काफी ज्यादा विचार थे, मैं पोलाइट था, हमल था, लेकिन और गहनता से समझा तो वास्तव में रियलाइज किया कि अल्टीमेट एम लाइफ का क्या, अल्टीमेट एम है कि वी शुड डू समथिंग फॉर अदर्स। अपने लिए कितना ही करो कम पड़ेगा। आपके पास 5 गाड़ी है, 5 गाड़ी और ऐड कर दो, 2 बंगलो है, 50-100 करोड़ की जमीन और ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता है। आप दूसरों के जीवन में कितना बदलाव लाते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं, वो मैटर करता है। वो आपको वास्तव में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, आपको इनर पीस देगा, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। और उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया, नहीं मैं ना यूएस जाऊंगा ना यूके जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनीवेयर। और उसके बाद से मेरे माइंड में चेंजेस हुआ और मैंने फिर सिविल सर्विस और ये सब कार्य करना शुरू किया। और वास्तव में अगर मैं कहूँ अभी, तो मेरा मन में इतना इनर पीस है, मेरे मन कभी अशांत होता ही नहीं है। अशांत इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे किसी प्रकार का इनसिक्योरिटी नहीं, किसी प्रकार का कोई फियर नहीं, कोई एंग्जाइटी, कुछ भी नहीं है। तो ये अपरिग्रह में सिखाता है। तो मैं, मेरे जो भी काफी मेरे मित्र हैं जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मैं यही कहता हूं कि आपके पास आप 100 करोड़ और अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लो। आपकी औखे की घड़ियां है, उसका कोई भरोसा नहीं है, आज है साथ चल रही, कल नहीं चलेगी। समाज के लिए करो कुछ, अपने जो जैन समाज के भाई है, जिन जो संपन्न नहीं है, उनके लिए कुछ फ्लैट बना के दो, उनको थोड़ा सपोर्ट करो, मतलब वित्तीय सपोर्ट करो, ताकि वो भी स्टेबल हो। क्योंकि ये हमारा समाज एक वृक्ष है, अगर इस वृक्ष का एक पत्ता अगर दुखी है तो ये वृक्ष सुखी नहीं हो सकता। हमें इजरायली कम्युनिटी से सीखना चाहिए। जो इजरायली जूइस हैं वो कितने एकदम यूनाइटेड है, एक दूसरे की कितनी मदद करते, तभी वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो पाई। और यूएस में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जूइस का चलता है, इजरायली कम्युनिटी का चलता है, पूरी इकोनॉमी को वो डिसाइड करते हैं। यूके में देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंट्री में, क्योंकि वो यूनाइटेड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में ये आती है कि हम यूनाइटेड नहीं है, अपरिग्रह कुछ लोग फॉलो करते हैं। मैं सबको कहता हूँ थोड़ा थोड़ा हमें एक फिक्स करना चाहिए कि भाई हम समाज के लिए कुछ करेंगे। तो कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि ये सब जो हमारे पास पड़ा है वो सब मिथ्या है। हमारे जितना काम आए उतना काम करना चाहिए। कब हमारे से चिन जाएगा, कितने हमारे बड़े बड़े साधर्मिक भाइयों की मृत्यु होगी कोविड-19 में। चेन्नई में हमारे समाज के थे काफी, सब मैं राजस्थान हॉस्पिटल से जुड़ा हूं, तो मैंने देखा कितने लोग। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जैन धर्म का, मेंटल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ।
आपने कोविड-19 में देखा होगा, सभी एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी पे ध्यान दो, इम्यूनिटी पे ध्यान दो, योगा करो, मेडिटेशन करो। क्योंकि कोविड-19 में जो सबसे बड़ा जो मैंने मरीजों को देखा है, काफ़ी मरीज जिनमें समता भाव था, पेशेंस था, जिनमें फ़ियर नहीं था, एंग्ज़ायटी नहीं थी, जिनमें मृत्यु के प्रति डर नहीं था, वो यही मान रहे थे कि नहीं, हम ठीक हो जाएँगे अगर कर्म किए हुए हैं, तो वो सर्वाइव कर पाए। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, अदरवाइज वे नॉर्मल थे, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। कोविड-19 था, काफी सारे लंग इन्फेक्शन बढ़ता है, कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है, काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनमें एंग्जाइटी के कारण, उनमें मेंटल वेलबींग नहीं थी, उनमें इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करने का मतलब वो स्किल्स नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये जैनिज्म हमें सिखाता है कि इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जो हम सामायिक करते हैं, जो हम काफी सारे जो हमारे पढ़ते हैं, वो हमारे में समता भाव की उत्पन्न करते हैं। आचार्य श्री हीराचंद जी काफी बार फरमाते हैं कि इंटेलिजेंट होना महत्वपूर्ण नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो तो आपकी इंटेलिजेंस भी व्यर्थ हो जाएगी। अगर आप में क्रोध को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, आप में ईर्ष्या को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, आप में भय को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आपकी इंटेलिजेंट पूरी व्यर्थ है, क्योंकि आप वास्तव में सही ढंग से मेंटल वेलबींग नहीं कर पाओगे। आप सही जो समभाव के साथ जीवन है, जो इनर पीस के साथ जीवन है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट के बिना, इमोशनली हेल्दी होने के बिना नहीं जी पाओगे। और कोविड-19 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा था, लोगों में मेंटल ट्रॉमा हो रहा था, लोगों में एंग्जाइटी हो रही थी, अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण भय आ रहा था, और वो सबसे बड़ा डिजास्टर बन के लोगों में आया। तो ये जैन धर्म हमें सिखाता है कि समभाव रखना चाहिए, समता रखनी चाहिए, क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए, जो अपना ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, उनको, क्योंकि ये सब हमारी मेंटल वेलबींग का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज के हमारे समाज के छोड़ो, सब युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। अगर हम उसमें उस प्रॉब्लम की तह में जाएंगे, गहराई तक जाएंगे, तो ये समस्या उन्हीं युवाओं में ज्यादा आ रही है जिनमें जैन धर्म के संस्कार, जिनके हृदय में नहीं बचे हुए हैं, जिनके हृदय में जैन धर्म के संस्कार नहीं है, उन्हीं युवाओं में ये प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे ज्ञानशाला जाते हैं, जिन बच्चों में वास्तव में बेसिक जो मूल्य है जैन धर्म के, वो हृदय में बसे हुए, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कभी मेरे को मतलब बहुत ज्यादा एंगर आया हो, कभी मेरे को इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हुई हो। कितनी बड़ी हमारे यहाँ स्ट्रेस रहता है, लंबे लंबे टाइम काम करना पड़ता है, 18 घंटे 20 घंटे, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, फिर भी मन में शांति रहती है, नहीं हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हो जाएगा। मतलब कोई मतलब इतना ज्यादा एंग्जाइटी, फियर, ये सब नहीं होता है। तो वो सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है। अगर वो नहीं होती तो मैं कभी इतना बड़ा वो झेल नहीं पाता, इतना बड़ा जो वर्क स्ट्रेस है, सोशल चीजों से भी मैं काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, उन सबको बैलेंस करते हुए, फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए, ये सब स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंट, ईक्यू हमें सिखाता है, इमोशनल कोशिएंट हमें सिखाता है, और वो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से आता है। तो ऐसी काफी बात। एक महत्वपूर्ण मैं बात और यहाँ पे आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अनेकांतवाद। जो सबसे बड़ा जैन धर्म को जो दूसरे धर्मों से जो अपने को डिफ्रेंशिएट करता है, वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में क्या है, जो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, हम एक दूसरे के व्यू को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जैन धर्म क्या कहता है कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है, ट्रूथ हमेशा रिलेटिव होता है। जो भी आप बात सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो न तो सत्य होती है, न असत्य होती है। जो आप कह रहे हो वो भी सही हो सकता है, जो मैं कह रहा हूं वो भी सही हो सकता है। सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिलेटिव ट्रूथ होता है। क्योंकि जो हमारे में परम सत्य को जानने का मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं दी है परमात्मा ने, न हमारे मस्तिष्क में है, न हमारे हृदय में। हम परम सत्य को नहीं जान सकते। जो कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही है, जो वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वो इसी कारण हो रही है कि एक देश दूसरे देश के विचार नहीं जान पाते, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को समझ नहीं पाता है। ये जो कम्युनल हार्मोनी है, जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, वो सब इसी कारण है। अगर अनेकांतवाद के एक सिद्धांत को पूरा विश्व अपना ले, जैन धर्म का जो दिया हुआ है, और जैन धर्म इसीलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म के साथ था। हम, मेरा व्यू भी सही है, आपका व्यू भी सही है, आप जो बोल रहे हो
आपके हिसाब से सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो उसके बाद जैन धर्म कहता है समन्वय, कि हम एक बार ये मान ले कि आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, तो फिर हम समन्वय की बात कर सकते हैं कि कॉमन मिनिमम हम कहाँ पे मिल रहे हैं, कॉमन मिनिमम हमारी एकता कहाँ पे हो सकती है। तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, उसको हमें समझना चाहिए, अनेकांतवाद को। अगर विश्व की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की मैं बात करूं, तो ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत से हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कोविड-19 पे की बात करूं तो काफी सारा मैंने आपको बातें बताई, ये हमको रिमाइंड कराती है क्रिसिस की हमारी हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है। जो हमने मतलब जो इतना खान पान हमने हमारा बिगाड़ दिया, जो हमारा जैन धर्म सात्विक भोजन की बात करता है कि न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, अभी हम इतना फास्ट फूड के कल्चर में आ गए, केमिकल के साथ कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हैं, तो हमने कितना हमारी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया है, कितनी हमारी इम्यूनिटी को नेग्लेक्ट किया है। ये कोविड-19 क्राइसिस हमें याद दिलाती है कि कितनी हमारी सोसाइटी मेटरलिस्टिक बन गई है, कितनी मतलबी बन गई है, कि जो डिफिकल्टी टाइम आया है वो हमें काम क्या आया, खाली फूड, वाटर और जो बेसिक दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेद हो, लग्जरी हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आई। जो मेटरलिस्टिक जो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था वो हमारे कुछ भी काम नहीं आया। काम हमारे सामने जो एसेंशियल चीजें थी वही काम आई। ये हमें याद दिलाती है कि कितना हमारे लिए समाज और परिवार महत्वपूर्ण है, जिसको हम हमेशा नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, अपने स्वयं हितों के लिए। ये हमें सिखाता है कोविड-19 की हमें हमें घरों में रहना चाहिए, कैसे हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना, कैसे हमें समाज के साथ रहने की भावना, कैसे हमारे फैमिली मूल्यों और सामाजिक मूल्यों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि जो हम काम कर रहे हैं रोज, वो हमारा रियल जॉब नहीं है। जो हम नहीं कर रहे थे, हम ये करने के लिए पैदा नहीं, जॉब करना जरूरी है, लेकिन खाली जॉब करना जरूरी नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ जिसको किसी को फायदा हो, किसी का जीवन बदले, वो कार्य करने चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि जो स्पिरिचुअल पर्पज है, जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पर्पज छुपा हुआ है, चाहे वो गलत हो रहा है चाहे सही, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे पर्पज है, और वो हमें समझना चाहिए। कोविड-19 क्राइसिस हमें बहुत अच्छे से याद दिलाती है कि हम सभी इक्वल हैं, चाहे हम किसी भी कल्चर के हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, चाहे हम कोई भी व्यवसाय करें, चाहे हम अमीर है गरीब है, चाहे हम फेमस हैं चाहे हम फेमस नहीं है। ये बीमारी हमें इक्वली ट्रीट करती है, और यही जैन धर्म कहता है कि हर जीव में आत्मा बसती है, हर जीव इक्वल है। और यही कोविड-19 क्राइसिस हमें कहती है। इसने ये नहीं देखा कि अमीर है तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, या गरीब को ज्यादा होगी, या आप बहुत फेमस हो तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, या आप किसी धर्म विशेष को तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। ये इस क्राइसिस ने किसी को नहीं देखा, इस क्राइसिस ने सबको इक्वली ट्रीट किया इस वायरस ने। और वही हमारा जैन धर्म कहता है कि हर जीव इक्वल है, हर जीव समान है, हर जीव की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये क्राइसिस हमें समझाती है कि हम सभी कनेक्टेड है। अगर एक पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे को हो सकती है, हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हम सब में ये मूल्य होने चाहिए कि हम एक दूसरे की परवाह करें, और इस वायरस को ना कोई पासपोर्ट चाहिए, किसी को भी, सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये क्राइसिस हमें सिखाती है कि हमें कोई किसी भी प्रकार का अहंकार, घमंड नहीं रखना चाहिए। हम कितने ग्रेट हैं, क्या करते हैं, ये वायरस हम सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये वायरस हमें सिखाता है कि हम कितने पावरफुल है, हमको कोऑपरेट करके इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना हमें रहना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद समय हो चुका है, मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ले पाएँ। और मैं यही पुनः बात सबके सामने दोहराना चाहता हूँ कि वास्तव में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी युवा पीढ़ी को कैसे जैन धर्म के संस्कारों से सुपोषित करें। इसलिए नहीं कि हमें जैन धर्म को प्रसार करना, इसलिए कि वो अपना जीवन अच्छे से जी पाए, वो अपना, उनके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या आने वाली है, जो इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, इतने मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वो ड्राइंग सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे तो चलेगा, स्विमिंग क्लास नहीं जाएंगे तो चलेगा, सीए नहीं बने, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर जैन धर्म के संस्कारों को जीवन में नहीं उतारा तो उनका जीवन सफल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम चाहते कि हमारी युवा पीढ़ी का जीवन अच्छे से व्यतीत हो, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए कि युवा पीढ़ी को हम जैन धर्म के संस्कारों से कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको सुपोषित करेंगे, ताकि ये हमारा जैन धर्म सदियों तक चलता रहे, और हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचते रहे। जय हिंद, जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर साहब। आई गेस यू आर ऑन मीट। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर साहब, थैंक यू वेरी मच।
जिस ओपन थॉट से और जिस ओपननेस से आपने हम सभी को एक्सप्लेन किया कोविड-19, जैन धर्म के सिद्धांत and the correlation of that. And the biggest thing which I could pick up was कि अगर आपको जिंदगी में सफल जीना है तो you should follow the principles which has been laid down. ये जैन केवल जैन लोगों के लिए नहीं है, केवल जैन कुल वालों के लिए नहीं है, ये समाज सभी के लिए एक विशेष उदाहरण है कि आई थिंक हाउ टू लीड लाइफ सिंपली एंड विथ a lot of perspective and a thought. We also have a few questions before we proceed over there. I'll just have Paras ji and Sushma ji to I think ask their questions. जय जिनेंद्र पारस जी साहब, आपका क्वेश्चन है डॉक्टर सुषमा जी सिंघवी, आपका क्वेश्चन है, आप आई थिंक डायरेक्टली यू कैन बी हैव योर थॉट्स और क्वेश्चंस प्लीज. I saw raise of hands and that's what I am putting in. और जब तक मैं आई थिंक एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले क्वेश्चन नितिन जी जैन का है कि सैनिटाइजेशन इज एसेंशियल टू डील विद सच पेंडेमिक इन सच सिचुएशन. What Jainism says, how our saints are getting protected. No doubt, Jainism focused on preventive steps. What about cure of this disease, especially for sadhu and sadhvis? Yeah, can you please repeat? साधु और साध्वी हैं, उनको इस डिजीज से कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम सब लोग तो शायद वैक्सीन ले लेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम साधु और साध्वी को कैसे बचा पाएंगे. डेफिनेटली जब ये कोविड-19 क्राइसिस शुरू हुआ तो मैंने काफ़ी कुछ आचार्यों को पत्र भी लिखा था कि किस प्रकार से हमें हमारे जो समाज के साधु साध्वी भगवंत है, इनको इनसे क्राइसिस से बचाना चाहिए. तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने ये कही थी कि एक तो जो क्योंकि जिस समय पीक पे था, अभी तो इतनी समस्या नहीं है, जब पीक पे था तो मैंने ये कहा था कि किसी को भी साधु साध्वी भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से इन्फेक्शन आता है, कि कौन व्यक्ति कहाँ से जाके आया, किन व्यक्तियों से मिला, किन व्यक्तियों से एक्सपोज हुआ. तो हमारे जो साधु साध्वी भगवंत हैं, जो हमारी प्रीशियस एसेट है, उनको सभी व्यक्तियों से एक्सपोज नहीं करना चाहिए. सेकेंड, मैंने ये कहा था कि क्योंकि ये कोविड-19 जो क्राइसिस है वो लार्जली जो 65 प्लस 60 प्लस ईयर पॉपुलेशन होती है, और वो भी डायबिटीज और कुछ अगर कोमॉर्बिड कंडीशन हो तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है. तो मैंने ये लिखा था कि अगर कोई साधु साध्वी भगवान 60 प्लस ईयर के हैं और उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको तो एकदम आइसोलेटेड रूम में रखना चाहिए एटलीस्ट फॉर सम टाइम, जब ये पीक पे था. और उसके बाद मैंने ये कहा था कि बाई चांस कभी किसी साधु साध्वी भगवान को कोविड-19 हो भी जाए तो हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जो हमारे स्थानक होते हैं, जो भवन होते हैं, जो उपाश्रय होते हैं, वहाँ पे एक आइसोलेटेड रूम रखना चाहिए और वहाँ पे हम ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, ताकि उनको हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी बेसिक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है. ज़्यादातर लोगों में 90% लोगों में खाली जो 4 to 5% व्यक्ति होते हैं, उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उनमें उनको डेडिकेटेडली डील करना पड़ता है. काफ़ी साधु भगवंतों को हुआ भी तो हमने आराम से यहाँ पे उनको स्थानक उपाश्रय में रख के उनको अच्छे से ट्रीट किया और ट्रीट भी हुए. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सुना है कुछ मध्य प्रदेश या इंदौर जगह पे साधु साध्वी भगवान का देवलोक गमन भी हुआ इसके कारण. तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे जो हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें साधु साध्वी भगवान को एक्सपोज नहीं होने देना चाहिए. तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी जगह फॉलो भी हुआ, काफ़ी जगह ये व्यवस्थाएं भी थी कि साधु साध्वी भगवान से दूर से दर्शन करने, उनसे 3-4 फीट दूरी पे खड़ा रहना. बट ये प्रिवेंट कर सकते हैं, और 65 प्लस को तो आइसोलेटेड में रखना चाहिए था. लेकिन अभी ये क्राइसिस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, इतना अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है. धन्यवाद. प्रोफेसर उदय जो नेमा यूनिवर्सिटी के डीन हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि what should be done so that these teachings are taught to others which are non-Jains and large percentage of population follow these principles. आपने जो principles बताया वो काफी useful हैं, but it should be known to people who are non-Jains as well. शायद जैनीज को इसका एक्सेस मिलता है, लेकिन बाकी कई लोगों को शायद नहीं मिल पाता. So that's a thought. Any thoughts on that, Dr.
तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर पालेवाल, आई थिंक यू हैव रेज ए वेरी वैलिड पॉइंट कि नॉन जैन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैन एक धर्म है, एक कोई मतलब इसको हम रिलीजन में नहीं, एक प्रिंसिपल है। इसमें हमारे आपको अगर मैं बात करूं तो काफी सारे हमारे साधु साध्वी ऐसे हैं जो जैन धर्म से नहीं थे। जो जैनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो जैन है। इट्स नॉट कि आप मतलब पैदाइशी जैन हो सकते हो। आप अगर अभी जैन हमारे जो बालोतरा है, बाकी जो आप क्षेत्र देखेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि काफी सारे जो नॉन जैन है, इवन जो मुस्लिम है, वो हमारे व्याख्यान में आते हैं, वो अट्ठाई करते हैं, उपवास करते हैं, पर्युषण के समय तपस्या करते हैं, क्योंकि जो जैन धर्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो जैन है बेसिकली। एक ही एक विचारधारा, एक ये दर्शन है, और उसको जो अपने जीवन में उतारता है वो जैन है। दूसरी बात आपने कहा कि हमें कैसे ये नॉन जैन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट उठाया। तो ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हम जैन धर्म को खाली मंदिरों, स्थानकों और उपासरों तक ही रख पाए, महावीर की वाणी को हम जन जन तक नहीं फैला पाए। महावीर की वाणी को जन जन तक अगर हम फैलाते तो काफी बड़ा बदलाव हम देख सकते थे, हमारे राष्ट्र में भी, विश्व में भी। ये लिमिटेशन थी जैन धर्म की, और बुद्ध धर्म इसीलिए बाकी देशों में फैला और जैन धर्म शायद इतना नहीं फैल पाया। तो इसके लिए काफी प्रयास अभी किए जा रहे हैं कि जो हमारे आगम थे, जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, उनको हम सरलीकरण कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं। काफी आचार्य इस पे कार्य कर रहे हैं, या छोटे छोटे इंग्लिश में छोटे छोटे टॉपिक उसमें से निकाल के छोटी छोटी बुक्स लिखी जा रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये महावीर के सिद्धांत है, जो जैन धर्म के सिद्धांत है, वो सामान्य जो भाषा लोग समझ सके उस भाषा में पहुंच पाए। तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि जीव जीवस्य भोजनम, डेफिनेटली इकोसिस्टम है, फूड चेन है। तो जैनिज्म यही कहता है कि जितनी आपकी जरूरत हो, जैसे हम सब्जी खाते हैं, हमें हरी सब्जी भी खानी पड़ती है, हमें गेहूं भी खाना पड़ता है, तो जितनी जरूरत तो उतना ही उपयोग करना चाहिए, जिसको हम अपरिग्रह बोल रहे थे। तो वो एक सिद्धांत जैनिज्म का, तो उसको हम इससे काउंटर कर सकते हैं, जीव जीवस्य भोजनम। थैंक यू वेरी मच। सुषमा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ ओपाइन करना चाहेंगे? आपको थोड़ा सा अनम्यूट करना पड़ेगा सुषमा जी, प्लीज। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अनम्यूट। सबको जय जिनेंद्र। और बहुत ही आनंददायक मैं कहूंगी डिस्कोर्स हुआ महावीर भाई का, और हम बहुत लाभान्वित हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अपन अपने जैन परिवारों में अपरिग्रह बने, उसके लिए एक छोटी सी योजना हमने बनाई थी। दीपावली अभी दूर है, तो दीपावली पर जैसे हम सफाई करते हैं, तो पूरे साल में जिन चीजों को केवल झाड़ पोंछ के रख रहे हैं या अलमारी में केवल सफाई करके रख रहे हैं, तो उसमें ये देख लें कि भाई जैसे हमने 10 दुकान जाके खरीदा, ऐसे अगर 10 गलियों में जाके जो चीज साल भर काम में नहीं आई उसको क्या बांट सकते हैं। क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात शादी ब्याह सब चले गए, साल भर में एक बार सारी चीजें आ जाती हैं, तो जिस चीज को छुआ ही नहीं गया, तो क्या हम उसको निकाल के और जहां जरूरत है दे सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग हमने शुरू किया था, बहुत आगे तो नहीं बढ़ सका, लेकिन उस पर इसके अलावा भी और हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद अपरिग्रही बने। महावीर भाई साहब, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें। मैंने इसमें काफी बार सोचा, और मेरी हजारों लोगों से इंटरेक्शन हुई होगी। जो सबसे मैंने जो मूल कारण सोचा ना, आजकल की अगर मैं जनरेशन को देखता हूँ, पेरेंट्स को देखता हूँ, मुझे नहीं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो शायद मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। जो हम हमारे बच्चों को जो सिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ये सब हम सबको, वो हम नहीं सिखा रहे। वो ये तेरी है, वो उस तरह की भावना आप देखोगे आजकल के पेरेंट्स में, वो मतलब कितना डिफ्रेंशिएट होता है कि वो मेरा बच्चा, मतलब यू चेंज। पहले जब मैं छोटा था, जब हम राजस्थान में रहते, तो कोई हमारी केयर नहीं करता था, हम सभी अंकल के लड़के साथ में खेलते थे। ये किसका है, किसी को पता ही नहीं होता था ये इसका टॉय या उसका टॉय, कोई लेना देना ही नहीं होता था कि ये मेरा, ये तेरा, ये कुछ भी भावना नहीं होती थी। अभी मतलब सबके लिए, एक घर में अगर एक बच्चा है तो उसके लिए भी आना जरूरी, उसके साइकिल आ गई, उसके एक्टिवा आ गई, उसके कार आ गई तो उसके भी, मतलब ये वाली भावना हम बच्चों में डेवलप करें। हम ये नहीं सोच रहे कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, क्योंकि बच्चे में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो आप अगर दूसरों को बारे में नहीं सोचोगे, दूसरों की फीलिंग के बारे में नहीं सोचोगे, तो आगे नहीं बढ़। तो ये बचपन से ही हमें जो संस्कार देने चाहिए वो मिसिंग हो रहे हैं। मैं बहुत दुख होता है आजकल के पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये, कि हम हमारे बच्चों का ही नुकसान करें, और भविष्य में ये नुकसान हमारा ही होना है। जो हम भावना बच्चों में अभी डाल रहे, कल वो हमारे साथ ये करेगा। ये हम सोच नहीं पा रहे। लॉन्ग विजन, जो लंबा विजन, जो दूरदर्शिता आनी चाहिए, वो आजकल के पेरेंट्स में नहीं आ रही है। कि वास्तव में हमने अगर जैन धर्म के मूल्य, जो बेसिक मूल्य है, समता भाव, समभाव, पेशियंस, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, ये सब नहीं सिखाएंगे तो अल्टीमेटली उसका जीवन ही खराब होना है, और फिर हमारा होना है उसके माध्यम से। ये हम सोच ही नहीं रहे, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बात को मैं इस माध्यम से कहूं तो ज्यादा उचित रहेगा कि हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो बेसिक भावनाएं बच्चों में, जो
जो छोटे होते तब डालनी चाहिए थी, वो हम डाल नहीं रहे। उसमें तो ये तेरा, ये चाचे की लड़की है, ये उसका है, ये उसका है, मतलब सब भावनाएं हम ही डाल रहे हैं। और फिर हम ही कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं सुनता है हमारी, जब वो थोड़ा बड़ा होता है कि ये तो हमारी सुनता नहीं है, कितना क्रोध आ रहा है, उसमें देरी ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, ये सब हम ही कर रहे हैं, हम ही इसके करता धरता है। और फिर दोस्त हम किसी और पे देते हैं, स्कूल में ऐसे होता है, दोस्त उसके ऐसे हैं, वो ये उससे सीख, अरे हमसे सीख रहा है, वो हमसे सीख रहा है। 70% चीजें बच्चा पेरेंट्स से ही सीखता है। आपने आपने बहुत सही कहा। मतलब मैं इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा भी ऐसी हो। भाई तू लाल वाले जूते ले आ, चल पहना देती हूँ, चल वो ड्रेस ले आ, तेरी ड्रेस तेरा जूता, उसके चीज को हाथ मत लगाना। तो ये आपने सही कहा कि हमारी भाषा भी ऐसी हो कि तेरा मेरा की बजाय जो वस्तु है उसको वस्तु कहें, व्यक्ति है उसको व्यक्ति कहें, और छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। बहुत सुंदर। और हम लोग इस अपने जीवन में अपरिग्रह कैसे आए, इसके लिए कुछ सामूहिक प्रयास भी करेंगे और हम आपस में मिलकर ऐसा कार्य करेंगे इसी भावना के साथ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच। We I think good interest, good part, and Mahavir ji has been very passionate about what he has been speaking is what we call that is what distinguishes him from all the people across. I do recall कि जब उन्होंने मेरे को एक बार APJ कलाम साहब की पूरी स्टोरी सुनाई थी, and the way he used to love him. So I think President of India, the way he used to probably like a 21-year-old scientist who was very clear from heart, very very confident, very very clear what he wants to do, and जो उन्होंने interaction बताया और community के पहले, I think he shifted from person to community, which was a great part, and that's how leaders are made. So thank you Mahavir ji. हमको काफी गर्व भी है आप पे. I think we are so proud and to be associated with you and know you. Narpat ji, I think we couldn't connect you earlier. आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन था? I saw a raise of hands from you. Yes sir. Hello. हाँ नरपत जी साहब, प्लीज. आवाज आ रही है सर? परफेक्ट सर. सादर जय जिनेंद्र, पाली से नरपत चोपड़ा। महावीर साहब को तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ मैं। महावीर साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम अभी जैसे आपने बताया है कि क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है और आगे भी डिजास्टर काफी आने वाले हैं, तो अभी युवाओं को हम जैनिज्म के माध्यम से ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कर सकते हैं और आगे का फ्यूचर प्लान क्या है कि क्या चीज हमको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा फोकस डालिए। क्योंकि अभी युवा है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इतना जैनिज्म से, तो उसके लिए क्या आइडिया है? अभी क्या समय की भी बहुत कमी रहती है, ज्यादातर युवा सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ रहता है, सोसाइटी के लिए कुछ इतना उसके पास टाइम नहीं रहता है कि वो कुछ कर सके। उसके बारे में थोड़ा फोकस करे और हमको गाइडलाइन करे, आइडिया देवे कि हम उसमें कुछ काम कर सकें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने काफी जो बीच बीच में बोला उसमें उसका आंसर आ जाता। फिर भी मैं अगर क्लियर कट कहूँ कि अगर मैं युवाओं को कहूंगा कि भाई स्थानक आ जाओ, 4 घंटे सामयिक करनी और व्याख्यान सुनना है, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट। हमें अगर युवाओं को वास्तव में कनेक्ट करना है तो मैंने आचार्य श्री से भी इस हीराचंद्र जी से भी इस बारे में काफी बार चर्चा की है कि हमें जो हमारे जो युवा संत थे उनको इस ढंग से ट्रेन करने की आवश्यकता है कि वो आगम को उनकी जीवन शैली से जोड़े। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं ये अगर जैनिज्म का ये प्रिंसिपल फॉलो करूं तो वास्तव में मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे में क्या नया डेवलपमेंट होगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव होगी, मेरा व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। क्योंकि काफी सारे जैनिज्म, अगर मैं बात करूं तो जैनिज्म पूरा हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी जीवन शैली को बहुत ही बेहतर करना है तो जैनिज्म का एक एक प्रिंसिपल आप उठा लीजिए, अपरिग्रह कितना हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है कि मुझे कोई किसी से मेरी कोई अपेक्षा ही खत्म हो जाएगी। अगर मेरी अपेक्षा खत्म होगी तो मुझे किसी चीज का डर ही नहीं, मुझे भय ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे परिवार की जरूरत कितनी है, मुझे कितना कमाना है, मैं भागूंगा ही नहीं, मैं परिवार को समय दूंगा, मैं समाज को समय दूंगा। मेरा जो डर होता है मेरे को हमेशा रहता नहीं, तो आप देखना कितना रहता है, ये बिजनेस करूं, वो करूं, यहाँ भागूं। अपरिग्रह में ये सिखाता है। उसके बाद समता भाव। तो जैनिज्म के ये प्रिंसिपल जब तक हम हमारे युवाओं को यह समझाने में कामयाब नहीं होंगे कि ये प्रिंसिपल आपके जीवन शैली को बेहतर करने के लिए, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं, आपके हित के लिए, तब तक वो नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात है, समाज में मैं बैठता हूँ, हमारा अभी तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, युवा आ रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है ना वो युवाओं को दूर कर लेती है।
जो खींचतान वहां पे चलती है, एक व्यक्ति इसकी टांग खींच रहा है, एक व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं केकड़ा प्रवृत्ति। एक साधु भगवान जा रहे थे, मछली मार्केट था, ठीक है, तो वहां पे दो टोकरी थी, एक मछली की टोकरी थी और केकड़े की टोकरी थी। मछली की टोकरी थी, उस पे मछुआरे ने ढक्कन नहीं लगाया हुआ था, और केकड़े की टोकरी थी, उस पे ढक्कन लगाया हुआ था। तो उस व्यक्ति ने साधु जी ने पूछा कि भाई तूने इस पे ढक्कन क्यों नहीं लगाया हुआ है, केकड़े की टोकरी पे? तो कि साहब ये मछलियां हैं, तो वो तो बेचारी अंदर बैठी हुई है, लेकिन केकड़े की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर एक केकड़ा बाहर निकलेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचेगा, इसलिए इस पे ढक्कन लगाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। एक केकड़ा बाहर निकलेगा तो दूसरा उसकी टांग खींचने के लिए तैयार है। वही हमारी सामाजिक संस्थाओं में चलता है। एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसने क्यों किया, मेरे कार्यकाल में ये क्यों नहीं हुआ, इसके कार्यकाल, तो वो फिर ग्रुपिंग बनाना शुरू हो जाता। तो ये युवा सब देखते तो उनको लगता है कहाँ इस बछेड़े में पड़ना है, क्योंकि युवाओं को क्या चाहिए, कुछ काम चाहिए, कुछ ठोस काम चाहिए कि जिससे वास्तव में दिखे कि कुछ इम्पैक्ट आया है। सामाजिक संस्थाओं में क्या चलता है, और हम वास्तव में कह रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा बदलाव करने का समय, जो हमारी भावना है कि पट होना चाहिए, नाम लगे, तख्ती लगे, उससे बाहर आने की जरूरत है। ये तख्ती कोई जिंदगी में पड़ता नहीं है। जिसने दाता ने दान दिया वो लोगों को दिखा के बताए तो बात अलग है, बाकी कोई उसको देखने के लिए नहीं होता। वो जब तक सोच नहीं जाएगी कि मैं कुछ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, किसी को इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, तब तक हम नहीं बदल पाएंगे। तो हमारे युवाओं को अगर जोड़ना है तो काफी सारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में बदलाव करने का, जिस ढंग से हम युवाओं को कनेक्ट करें, उसकी प्रोसेसेस, उसकी प्रक्रियाओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये सब काफी सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, ये ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। हमारे, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस है, बुजुर्ग हैं, उनका होना बहुत जरूरी है, उनके अनुभवों को भी आवश्यकता है, लेकिन युवाओं को थोड़ा सा बदलाव सामाजिक प्रक्रियाओं में, संस्थाओं में लाने की आवश्यकता है। नहीं, उसके लिए कोई आइडिया, आइडिया मैं बता रहा हूँ, देखे जैसे ये प्रोग्राम है। हाँ हाँ, नहीं, मैं प्लीज एक चीज ऐड करना चाहूंगा। प्लीज प्लीज नरपत सर, ने कहा वो सही है। हमारे समाज में या दुनिया के अंदर आप जो भी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, जो युवाओं का बेसिक प्रेरणा होती है कि आई थिंक कि व्हाट इज सक्सेस फॉर देम, सक्सेस फॉर देम इज आइदर अ डेजिग्नेशन और सक्सेस फॉर देम इज टू गो एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। उनकी ये इच्छा होती है। अगर आप हमारे यहाँ पे भी कई लोगों को देखेंगे, उन्होंने जैन प्रिंसिपल्स फॉलो किए होते हैं, लेकिन उनको इसकी नॉलेज नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि घर के बच्चों को, घर के युवाओं को और समाज के युवाओं को कुछ वो प्रेरणा स्रोत चीजें बताई जाती हैं तो उनको समझ में आता है। आज कई बार एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि इंडिया क्रिकेट का मैच जीत गया, लेकिन उसके अंदर 4 बच्चे या 5 बच्चे या 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो जीवन की जिन संघर्षों से जूझ कर और इस मुकाम पर पहुंचे। आई गेस ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे यहाँ पर भी हैं। और अपन महावीर जी का एग्जाम्पल देखें, आई थिंक क्लासिक एग्जाम्पल, हम लोग को जो आचार्य श्री से प्रेरणा मिली है और उस हिसाब से आगे बढ़े हैं। आई कैन ऑलवेज टेल कि हम सब पे विशेष कृपा रही है। हम चाहते हैं कि सारे युवाओं तक वो कृपा या वो संदेश पहुंचे। I know, I think we have limitation of time, so I think that's where we okay. minutes से class, I think वो हम respect करते हैं। महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much. Manish ji, you would I think over to you. We have a few people, I think, but I think we have some limitation of time. Thank you. सभी को सादर जय जिनेंद्र। महावीर भाई साहब ने जिस तरीके से जैन धर्म का प्रस्तुतिकरण किया, मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल मॉडर्न तरीका था और कॉन्टेक्स्ट जो था कोरोना का वो बहुत बहुत एप्रोप्रिएट था। उन्होंने सारी चीजों को इस बखूबी रिलेट कर दिया कि मेरे जितने युवा भाई आज सुन रहे होंगे, जितने युवा भाइयों ने आज इस सेमिनार को देखा या बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड, तो मुझे लगता है कि वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे इन मूल्यों की वैल्यू को कि ये कितने वैल्यूएबल है हमारे लिए और हमें बहुत सहजता से मिल गए। इस मौके का मैं फायदा उठाना चाहूंगा इस रूप में कि मैं एक संदेश आप सबके बीच में देना चाहता हूं कि देखिए, रत्न संघ ने अपने डिफरेंट फॉर्म्स के जरिए सोसाइटी के हर व्यक्ति को कनेक्ट करने की कोशिश की है और उसी में एक स्टेप जो था वो ये था प्रोफेशनल फोरम। हमारे संघ से बहुत सारे युवा हैं जो सीए हैं, एडवोकेट हैं, कुछ लोग जुडिशरी में है, कुछ आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी में चले गए, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। हमने एट लार्ज सबके भले के लिए ये सोचा कि सब अपने अपने तरीके से आए और अपनी अपनी बात रख सके। वो जो एक लार्ज होलिस्टिक व्यू है या एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, जैसे कल बजट आ रहा है
तो करीब करीब बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है समझने में कि मैं इसको डिकोड कैसे करूं, मैं समझूं कैसे कि इसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां हमारे सीए फ्रेटर्निटी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसके अंदर वो ज्वाइन करें और अपने अपने व्यूज शेयर करें, फिर बाद में हम उसको थोड़ा सा और सामान्य शब्दों में लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जैसे महावीर जी ने समझाया। ऐसे ही डॉक्टर्स का ग्रुप बने, इंजीनियर्स का ग्रुप बने। इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रत्न ऐप पे आप अपना अपना डाटा प्लीज फुल कीजिए, हम तक जानकारी आनी चाहिए ताकि हम उस ग्रुप में आप लोगों को जोड़ सके। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, महावीर जी वाली बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। और भगवान महावीर स्वामी के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को एक मैसेज मिला था मेघ मुनि के नाम से। मेघ मुनि की कथा आपको ऐसे याद नहीं आएगी, मैं आपको दूसरे तरीके से याद दिला देता हूँ। वो हाथी वाला जीव जिसने पैर ऊपर रखा, खरगोश की जान बचाई, प्राण भूत और सत्व की अनुकंपा की, और वो जीव अल्टीमेटली मोक्ष तक पहुंचा। तो कैसे जीव का उत्थान होता है सिर्फ थोड़ी सी भावना बदलने से कि मैं किसी की जीव की जान बचा सकता हूँ, बाकी लोगों को सहयोग कर सकता हूँ। यही सारी चीज महावीर जी ने बताई, वही सारी चीज आगम में लिखी हुई है। तो हमारे को गुरुदेव बार बार एक मैसेज देते हैं कि आप सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मगर आपका जिस एक्टिविटी में इंटरेस्ट है वो आप हमें बताइए। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं विहार सेवा में जा सकता हूँ, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, वो जो संस्कार शिविर लगते हैं उसके अंदर पढ़ा दे। किसी को ये लगता है बोले कि नहीं मैं दान दे सकता हूँ, तो वो दान दे दे। कोई ना कोई एटलीस्ट एक एक्टिविटी आप चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और उसमें आप आगे आए, उसके लिए आप हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे आपको उस एक्टिविटी से कनेक्ट कर दे, ताकि आप अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटी के जरिए आगे बढ़ जाए। और दूसरे लोग, अगर हर एक आदमी अलग अलग एक्टिविटी में भी जुड़ेगा तो संघ का हॉलिस्टिक, आप सोचिए पूरा संघ का विकास होगा, पूरा संघ आगे बढ़ेगा। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात से चालू किया था शेखर साहब ने, ये उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप होगा। हर एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चालू करे तो संघ भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, और विश्व के अंदर एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम देखेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो मेरे हिसाब से समय चूंकि हो चुका है, तो शेखर साहब को ओवर टू यू, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय जय। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महावीर साहब ने बहुत पैशनेटली इतना ढंग से हमें समझाया। कोविड-19 के सारे वैक्सीन उन्होंने पर्सनली आई थिंक जिस हिसाब से असेस किए हैं, देखे हैं, और हम सबकी कई बार भ्रांतियां हैं। आई थिंक मैंने उनसे एक पर्सनल डिस्कशन किया है और और पाया है, गिवन हिज मेडिकल नॉलेज एंड क्लैरिटी, आई थिंक वी गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट देश बहुत अच्छे और बहुत सही रास्ते पर है। उनका एक और मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने शायद कोविड से बचा लिया। जो कोविड से ज्यादा खतरनाक चीजें अगले 5, 10, 25, 50, 100 साल में आएंगी, उससे अगर समाज को बचाना है तो जैन प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको जो प्रिंसिपल्स उन्होंने आज समझाए उसकी वैल्यू हमारे जीवन में हमको तो उतारनी ही है। शायद हम लोग शायद कुछ जानते ही हैं, लेकिन हमारे साथ वाले जितने भी साथी हैं, शायद जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको शायद उसको एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महावीर साहब इज ट्राइंग टू डू इट एट द सेंट्रल लेवल एज वेल, सो वो even from the prime minister level and through नीति आयोग and etc, he is trying to have a few things. कुछ देश के अंदर हमने बदलाव देखे हैं, कुछ थॉट प्रोसेस चेंज देखा है, बट यस इट इज अ प्रोसेस आई थिंक विच वी वर्क ऑन। बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन वी विल लुक फॉरवर्ड टू seeing you at the next forum, the 11th forum. Thank you very much. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।